Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers, an iron tawa pan nail is left exposed to humid temperature, grapes get fermented, food is cooked. मैं Cookie क्या पढ़ food. रहा हूँ? Food gets food gets food हमें gets रिकॉर्ड In all the above situations, the nature and the identity of initial substances by ऐसे बीच में मत कर, have somewhat changed. We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know what a chemical reaction has when a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. Skip it. Activity नहीं कर रहे हम. You must have observed that ये important चीज है, ये हमेशा आती है. मेरा पेन कहाँ है? ये तो कितना साल से टेंथ में है? 何お前はもう死んでいる。 अरे भाई ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 7th में भी थी. इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम ribbon burns with a dazzling white flame and changes it to a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in air. Okay. Activity skip. इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. क्या? देख, why magnesium ribbon is cleaned before like using burning से पहले क्लीन क्यों किया जाता है? हाँ तो ये है ना नीचे, ये नीचे है ये हाँ क्वेश्चन. चैट हाँ हाँ है सही बोल रहा हूँ. Why is magnesium ribbon? हाँ चल थोड़ा ऊपर कर. हाँ बस. From the above three activities we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place: change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature. Okay. As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. पढ़ना नहीं है, Chemical समझाना भी है. समझाना भी है बे. अच्छा पढ़ तो हम खुद भी लेंगे. तो इसमें यही था. एज मतलब ये 3 एक्टिविटीज से वी कैन ये चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये होते हैं फैक्टर्स. जब एक केमिकल रिएक्शन होता है या तो चेंज इन शेप होगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस. चल आगे बढ़. Chemical equations. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide, white powder. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in a form of a word equation. The word equation for the above reaction would be magnesium plus oxygen gives us magnesium oxide. तो ये बेसिकली वर्ड इक्वेशन होती है, सिर्फ वर्ड्स में, ठीक है, विदाउट एनी सिंबल्स एंड ऑल. द सब्सटेंसेस दैट वर्ड इक्वेशन को कहते क्या है? वर्ड इक्वेशन भाई, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. अभी हम पहले आगे पढ़े जितना हमें बुक में, ठीक है. The substances that undergo chemical change in the reaction 1.1, magnesium and oxygen are the reactants. Magnesium और oxygen reactants है जो react करेंगे. New substance magnesium oxide and formed during the reaction is the product. Magnesium oxide product है. A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them.
The reactants are written on the left side, LHS with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them if there are two products. The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction. Next page. Next page, brother. Brother V. Brother, we. इन्हें नाचने का शौक है. इन्हें नाचने का शौक, बस नाचने का शौक. बस Is there any other shorter way for representing chemical equations? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. तो ये जैसे हम लिखते हैं normally symbols के साथ, a chemical equation represents a chemical reaction. ये क्या लाइन है बकवास? If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as Mg plus O2 gives us MgO. क्या है? Mg Balanced है? magnesium plus O2 is equals to No, magnesium this is oxide. not balanced. ये balanced नहीं है. तो दो लगा दो, Mg के आगे दो लगा दो, उसके आगे MgO पे Mg पे दो लगा दो और MgO पे दो लगा दो. पे दो लगा दो. ठीक है? Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of each element the same on both sides? No. Then the equation is unbalanced because the mass is not. क्या कर रहा है यार? Yeah. Then the such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction which is not balanced. Okay, unbalanced equation. ठीक है? आगे बढ़ो. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. ठीक है? Balanced chemical equations. Recall the law of conservation of mass that we studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. Is the chemical equation 1.2 balanced? No. The word equation for activity 1.3 may be represented as नीचे कर. इसमें यही है, law of conservation of mass होना चाहिए. Mass is neither created nor destroyed after a reaction. ठीक है? अब ये है एक फॉर्मूला दे रखा है हमें. जिंक इक्वेशन दे रखी है. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है? The above word equation may be represented by the following chemical equation. Zinc plus sulfuric acid gives us zinc sulfate plus hydrogen. Is this balanced? कौन बताएगा? Balanced है. Yes. Balanced है ना? हाँ. Yes. Yeah. Balanced. ये देखो ये टेबल भी दे रखी है. एक नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स या LHS RHS दे रखा है. एकदम इक्वल है. ठीक है? जो सब छोड़ना. As the number of atoms of each element is the same on both sides of arrow, equation 1.3 is a balanced equation. ठीक है? Let us try to balance the following chemical equation. करो भाई, बहुत सिंपल है. तुम भी कर. हो गया. मेरे को तो आती है. मेरे को भी आती है. तो बस तो फिर आगे बढ़ो. 3 लगा इसी के आगे. नीचे अरे नीचे स्टेप्स दे रखे हैं ब्रो. ये 2 इतना. और ये 2 और यहाँ पे भी 2 हो गई. तो पर हम ये स्किप कर दें क्या? हाँ. करें. बैलेंसिंग छोड़ दे. बैलेंसिंग छोड़ो. सबको इस याद चैप्टर में मेन चीज है इक्वेशन याद करना. इक्वेशन याद करना. कितने सारे इक्वेशंस है इसमें. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, रुक जा. यहीं रुक जा. हाँ, राइट सिंबल्स ऑफ. हाँ 7 स्टेप. 7 स्टेप पे चला जा. स्टेप 7 पे पेज नंबर 5. हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं.
यही बस स्टॉप पर हल्का सा ऊपर स्टेप 6 से करेंगे फाइनली अरे यार finally to check the correctness of the balanced equation we count atoms of each element on both sides of equation ठीक है ये balanced हो गई हमारी the number of atoms of elements on both sides of the equation are equal this equation is now balanced this method of balancing equation is called hit and trial method ठीक है ओए ये वाला hit and trial होता है as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number और इस साल coefficient हमें ये पढ़ना और कोई मेथड नहीं है इस साल हाँ step 7 writing symbols of physical states ठीक है carefully examine the above balanced equation does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product no information has been given in this equation about the physical states to make a chemical equation more informative the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula the gaseous, liquid, and aqueous and solid states of reactants and products are represented by the notations G gas, L liquid, AQ aqueous, and S solid, respectively. Okay. The word aqueous AQ is written if the reactant or product is present as a solution in water. Very important. The balanced equation becomes ये देख लो Fe सॉलिड होता है वाटर गैस वाटर वेपर है मतलब ये और जो प्रोडक्ट है सॉलिड में और फिर गैस इसमें से एक हाइड्रोजन क्वेश्चन गैस मैम ने क्या दिया था वो क्या इसमें दिया से एक था क्वेश्चन मैम ने दिया था कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन 5 पॉइंट है 5 मार्क्स का आ सकता है कहाँ आंसर क्या है देख फर्स्ट उसमें स्टेट नहीं बताया होता हाँ स्टेट ऑफ मैटर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं बताया होता हाँ तीसरा अंडर कंडीशन विच दैट इज टेकिंग प्लेस हम्म और फिर चौथा इट डज नॉट से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या होता है कि साथ नहीं चलता कि दोनों क्वेश्चन एक साथ बार होना चाहिए रिपीट लेफ्ट साइड और करियो राइट साइड What are what the are the limited limitations of skeletal chemical अच्छा equation? स्केलेटल में तो कुछ नहीं होता ना बस वही होता है नाम होता है हाँ बस State is not given, हाँ it is not balanced. The हाँ it is not necessary to be balanced मतलब जरूरी नहीं है कि वो बैलेंस्ड हो क्या पता बैलेंस्ड हो जैसे वो हमारी वो वाली फिर वो इक्वेशन थी skeletal नहीं जिंक हुआ प्लस skeletal होता है भाई वो बिल्कुल स्केलेटल रॉ है फिर skeletal हाँ बिल्कुल रॉ एकदम होता है कुछ नहीं होता चलो आगे बढ़ते हैं note that the symbol चल G चल is आगे used with water to indicate that in this reaction water is used in form of steam usually physical states were not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, carbon monoxide है ना ये? हाँ 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 क्या सी हो हाँ कार्बन plus मोनोऑक्साइड hydrogen gives us what is this? I don't know this. मीथेन है मीथेन Methane, हाइड्रोक्साइड है methane नहीं होता मीथेन हाइड्रोक्साइड थोड़ी होएगा सॉरी okay सॉरी मीथेन हाइड्रोक्साइड क्या होता है CH2 तो पता है CH2 मीथेन होता है इतना मुझे पता है अरे हाँ केशव सर ऐसे ही करो ना CH3OH है ना हाँ CH2O CH3OH मेथनॉल मेथनॉल मिथाइल मेथनॉल अल्कोहल ठीक है मिथाइल अल्कोहल हाँ लिख लो वहीं पे लिख लो आ सकता है और CH2 is methane CH2 मीथेन है हाँ CH2 मीथेन है वो मुझे पता मेथिलाइन मेथिलाइन मेथिलीन क्या मिथाइल है मेथिलीन होता है CH2 और CH3 होता है methyl group ओके
थोड़ा सी अभी जरूरत। अल्कोहल चलो आगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस में, वाटर गिव्स अस, ये वो है फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन। Sunlight और photosynthesis ग्लूकोज sunlight गिवन with sunlight and chlorophyll necessary. Using these steps, can you balance equation 1.2 given थोड़ा in the text आराम से earlier? अरे नीचे करो, ये बकवास है, हमें बैलेंस सिखाती है। टाइप ऑफ cosine केमिकल इक्वेशंस। इस चैप्टर में से फिक्स चीज है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। cosine एक इंडेक्स क्वेश्चंस भी कर ही लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं ये। Why should Why a should- magnesium ribbon be cleaned before burning in air? बताओ। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वो ऑक्सीजन होता है एनवायरनमेंट में, तो ऑक्सीजन हाँ। से वो रिएक्ट करके वो पहले ऑक्साइड की ही लेयर फॉर्म कर लेता है। हाँ पहले ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, तो प्योर मैग्नीशियम नहीं बर्न हो पाता, इसलिए क्लीन करना पड़ता है। समझ नहीं आया मुझे। देख, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम हाँ ऑक्साइड बनाने के लिए। तो जब मैग्नीशियम रिबन पहले से पड़ा होता है, तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की पहले से लेयर पड़ी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रखा होता है। तो जब उसे बर्न करना होता है, उससे पहले उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को क्लीन करना पड़ता है, वरना वो इम्प्योर बर्न होता वरना वो रिएक्ट कर लेती है, MgO बन जाता है। है। MgO बना हुआ होता है। नहीं वो हाँ हम देखो, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे magnesium जो is हमें a चाहिए होंगे। reactive metal. It will react with oxygen and form a layer of MgO on surface of metal. Magnesium oxide is very stable compound, and after formation of this layer, it will not react further. For the removal of this layer, magnesium ribbon is cleaned by sandpaper. वही तो हम कह रहे थे। नहीं, तुम लोग ये कह रहे हो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो पहले से नेट होता चला है, गया। बाद में बनता है रिएक्ट होने के बाद। चलो आगे। Write the balanced equation. Okay, we don't this. H2 plus Cl2 gives us 2HCl. हाँ यही है। BaCl2 plus Al2SO4 gives BaSO4 plus Al2Cl. AlCl2. Yes. Sodium plus water, Na plus H2O gives NaOH plus H2. Yes. Twice NaOH plus H2. सोडियम Na plus H2 चलो NaOH plus H2। नेक्स्ट ये ऐसे क्वेश्चन मम्मी का तो बहुत है कि इसके नीचे दूंगा सॉल्यूशन वाले। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water, मतलब in aqueous. water, BaCl2 aqueous plus Aqueous. NaSO4 aqueous NaSO4 gives Na2SO4. Na2SO4. हाँ BaSO4 plus NaCl. Yes. 2 NaCl. Next. नहीं 2 NaCl नहीं, हाँ 2 सिर्फ NaCl. NaC। अरे Na2SO4 तो है तो बैलेंस कर लेंगे ना। हाँ Na2SO4 है तो हाँ Na2 फिर ठीक है, मुझे लगा तो दूसरी की कह रहा है। NaOH with प्लस हाँ HCl NaOH plus HCl NaOH aqueous है तो aqueous plus HCl aqueous gives us NaCl. NaCl plus H2O. Yes. H2O in liquid. चलो नेक्स्ट। अब और कोई पढ़ाओ भाई। मैंने मैं कितने स्टार्ट पेज करता हूँ। तूने 6 पेज पढ़ा है, चलो मैं पढ़ाता हूँ। टाइप्स पढ़ा। ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के भी टाइप होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला, इसमें होता है जो बहुत दो और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म्स वन और मोर प्रोडक्ट्स। जैसे Yes. कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्विकलाइम है, रिएक्ट करती है वाटर के साथ, जिससे स्लेक्ड लाइम और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। इसमें स्लेक्ड जैसे लाइम है ये स्लेक्ड लाइम है और ये कोई लाइम है कैल्शियम हाँ ऑक्साइड। हाँ
जैसे इसमें दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लेग लाइम वाला। घंटा ये ओके, ये क्या है? डू यू नो वाला कि स्लेग लाइम सॉल्यूशन जो ऊपर हमने बनाया था, वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है, जिससे एक थिन लेयर बन जाती है वॉल्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट CH3। 2 या 3 दिन बाद व्हाइट वॉशिंग जब करते हैं, उसके 2-3 बाद एक शाइनी अपीयरेंस देता है, क्योंकि उसके साथ वाटर भी होता है। क्योंकि इसके साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ओके। तो अगर हम जब व्हाइट वॉशिंग कराते हैं तो दीवारों पे गीली दीवारें होती हैं वो। हाँ, चल आगे। बर्निंग ऑफ कोल। Some more combination reaction are burning of coal, C plus O2, C कोल है, O2 एयर में बर्न कर रहे हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और वाटर H2 plus O2, 2H2 plus O2 gives 2H2O। हमने ये नहीं पढ़ा था कि अगर उसका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ कोल का तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा? हाँ, ऐसा नहीं, था तो या नहीं था। हाँ, पहले जबकि अभी उसमें तक कार्बन मोनोऑक्साइड जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है और रूम में वो तो अभी नहीं, डेथ हो अभी नहीं, सकती है उससे। अभी कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर। एक सेकंड रुक। वेट अ सेकंड। वेटिंग। टाइम रन आउट हो रहा है, ठीक है? 10 हाँ, मिनट बचे हैं। मेरे पास भी आया मैसेज। ठीक है, तो 1.4 एक्टिविटी में हमने देखा था जब बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई थी, इससे जो मिक्सचर हाँ, था वो वार्म हो गया था। रिएक्शन इन विच हीट प्रोड्यूस होके बाहर निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट, एक्सो। हीट एक्सोथर्मिक, रिलीज। हाँ, एक्सो एग्जिट, बाहर, रिलीज। उसके एग्जाम्पल। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जिसमें होता है CH4 जो नेचुरल गैस है O2 के प्रेजेंस में, ये तो वो होता है बना। मीथेन। CH4 होता है हाँ, मीथेन। CH4 मतलब मीथेन। CH3, CH2। तू ही बोल रहा था CH2। मैं नहीं बोल रहा था। CO2 बनाता है और H2O बनाता है गैस के फॉर्म में। हाँ, steam। वेपर्स, वेपर्स। Do you know what the what that रेस्पिरेशन does? भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। तो जैसे Why? जैसे हम फूड भी ईट, डाइजेशन के समय वो फूड सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, जब बायो के चैप्टर में पढ़ा था हमने। जैसे राइस और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक डाउन ग्लूकोज। होते हैं। ये ग्लूकोज है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन सेल्स जो और बॉडी में है, लंग्स के थ्रू आते हैं और And एनर्जी then रिलीज provide करता है। energy. C6H12O6 reacts with 6O2 gives CO2 which we release with H2O and energy. तो इन, पहले इन, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होते हैं ग्लूकोज में हाँ, और फिर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से और फिर हाँ, ये रिएक्शन। हाँ, ओके। जिससे रिलीज होता है CO2 जो हम एक्सहेल कर देते हैं, और H2O वाटर और एनर्जी। तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये ठीक। एक्सोथर्मिक है। डीकम्पोजिशन बचा। द हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट में जब डिकम्पोज करते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे सॉइल में हम अगर वेजिटेबल मैटर को दबा के रख दें, तो हीट, हाँ, हाँ, ठीक है। आगे। वो वो जगह गर्म हो जाती है। हाँ, क्यों, ऐसा क्या होता है उसमें? हीट वो होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
हीट नहीं हाँ करती। वो सेम ही होगा ना, उसके अंदर भी तो कार्बोहाइड्रेट होगा, हाँ, तो ये ऑप्शन के साथ मिलेगा। नेचुरल सब्सटेंस। ये एक्टिविटी है, जैसे हम FeSO4 के क्रिस्टल लेते हैं, उसे गर्म करते हैं तो कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, कि जो पहले कलर होता है उससे वो चेंज हो जाता है। FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो Fe2O3 और 2SO2 और SO3 में ब्रेक डाउन हो जाता है और उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ओके। SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड? डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके। इस रिएक्शन में हमने जैसे देखा कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस FeSO4 ब्रेक डाउन हो रहा है Fe2O3, SO2 और SO3 में। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। वही बेसिकली हमारा, ब्रेक डाउन। हाँ, लाइमस्टोन वाला रिएक्शन। CaCO3 पे जब हम हीट अप्लाई करेंगे तो वो क्विक और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्विक होता है CaO और CO2 में ब्रेक हो कैल्शियम जाएगा। जिस ऑक्साइड। इस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट यूज होती है ब्रेक डाउन करने के लिए। और डिकम्पोजिशन भी होता है। हाँ, इस एक्टिविटी में हमने वो लेड तूने एक नाइट, पार्ट, हाँ ये मिस कर दिया तूने, एक्टिविटी के नीचे भी है कुछ इम्पोर्टेंट। वही तो पढ़ा रहा हूँ। इस एक्टिविटी में हमने लेड नाइट्रेट लिया और उसे बॉईल करा। बॉईल करने से कलर चेंज हो गया इसका भी, ब्राउन कलर की फ्यूम्स एमिशन होने लगा। ये फ्यूम्स है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। इसमें रिएक्शन होता है जैसे PbNO32, जब हीट होती है, हीट अप्लाई करते हैं, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है PbO और NO2 और O2। ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। जरूरत नहीं है ना वैसे पढ़ाने की। ना ये आता है। केमिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं मुझे समझ नहीं आता। ये वाला इम्पोर्टेंट है। You will see that। हाँ ये एक्टिविटी। इसे कैमरे ये में जो यूज होता एक्टिविटी, है ना। हाँ, ये है वो वाला डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया हमने, तो जब उस पर सनलाइट पड़ेगी तो लाइट का इफेक्ट पड़ेगा उससे, और उससे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और यही तरीका कहाँ लिखा है? मैम ने बताया था। ओ फोटोलिटिक। हाँ, हाँ, ओके। और इसी तरह का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही यूज होता है फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड वाला ना। सिल्वर ब्रोमाइड भी अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो वो भी सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इन रिएक्शंस में या तो हीट या लाइट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो एब्जॉर्ब में हाँ, वाली रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब एंटर। राइट। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चल के बता, गया शुरू होता। हो रहा है। ओए तो हाँ, तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले पर कब मैंने डिस्प्लेसमेंट देख ली? रिएक्शन। तो ये कर रहा है। ना मैं बस ऐसे ही खोल रहा था। तो अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टार्टिंग में हम एक्टिविटी में घुसाने की कोशिश है। इस एक्टिविटी में हम करते हैं 3 तरह के आयरन ले लेते हैं, पता उन्हें नहीं, साफ करो सैंड पेपर।
पता नहीं चैप्टर क्या शुरू हुआ? होता नहीं, एक्टिविटी पहले आ जाती है। एक्टिविटी पहले आ जाती है। तो कुछ नहीं है भाइयों इसमें। कॉपर नील को आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालना है। उसके बाद आगे हमें पता चला क्या होता है। क्या होता है जल्दी तो बता। इस आयरन नेल ब्राउनिश टर्न हो जाती है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है। ब्लू सॉल्यूशन का क्यों? कलर फेड हो जाता है। क्यों क्यों? क्यों क्यों? क्यों ये है क्यों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक डिस्प्लेसमेंट हाँ, रिएक्शन। वो तो ठीक है, बिकॉज आयरन ब्राउनिश क्यों हो जाती है? बता रहा हूँ ना, क्योंकि बता। आयरन अब डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके सोल्यूशन में से, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो अरे कहना क्या चाहते हो? आयरन था, आयरन नेल, तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर कवर हो जाती है जो कॉपर की है, जो आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को उसके सोल्यूशन में से। सो जो ये फॉर्मूला देखो, Fe plus CuSO4 which is copper sulfate gives us iron sulfate plus copper। तो ये बता रहा है कि जो आयरन था हमने पहले नेल के फॉर्म में लिया था, प्रॉपर नेल के फॉर्म में, और उसको हमने डिप किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। हाँ, सॉल्यूशन में डिप करने के बाद जो कॉपर था उसने पूरा रिप्लेस, जो आयरन था बिकॉज वो मोर रिएक्टिव है तो वो रिप्लेस कर देगा, उसने रिप्लेस कर दिया, कॉपर को बाहर निकाल दिया और कॉपर को अपने अपने जो अपनी जगह थी उसने अपनी जगह हाँ लात मार के बाहर कॉपर को निकाल दिया, और जो कॉपर को कोई को जगह नहीं अपनी मिली। जगह दे दी। हाँ, तो वो आयरन के घर, पुराने घर पे चला गया और आयरन अपने घर पे आ गया, नए वाले पे। कॉपर के घर। हाँ, नए घर पे आ गया क्योंकि आयरन ने उसको अच्छी जगह मिली, आयरन ने अच्छी कॉपर जगह को लगी है ज्यादा। आयरन ने कॉपर को ऐसे लात मारी जैसे फ्रांस ने बर्बन फैमिली को 5 बार। हाँ। हाँ, ये वैसे भी ही याद रख लो। ये भी याद रखो भाई लोग, हिस्ट्री में काम आएगा। हाँ, तो इसमें सिंपल बताया गया है, in this solution iron has replaced or remove other element copper। इन पे मत जाओ, ये वर्डिंग बेकार ही है, किसी काम की नहीं है। और आपको चलिए। मेन, अगर इस बुक में हमें कहीं भी मेन डेफिनेशन नहीं दी हुई तो आप पीछे जाओगे व्हाट यू हैव लर्नड, वहां पे आपको मिलेगा when an element replaces another element from its compound a displacement reaction occurs। इसको आप थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दो, in a displacement reaction an element displaces another element from its compound। ये आपकी डेफिनेशन बन गई, खत्म। कितना आगे बढ़ रहे हो? आगे बढ़ा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर क्लोरीन उसके का बाद और भी एग्जांपल्स जैसे जिंक तो अगर हम कॉपर सल्फेट में डालें तो वो वापस कॉपर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा, क्योंकि जिंक ज्यादा मोर रिएक्टिव है। यहाँ पे हमेशा बलि का बकरा कॉपर ही बनता है, आप ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पे भी हम लेड ले रहे हैं, रैप अप कर रहा है। हाँ चल कॉपर कंटिन्यू। क्लोराइड ले रहे हैं, हाँ, लेड ले रहे हैं और कॉपर क्लोराइड ले रहे हैं। कॉपर कॉपर क्लोराइड को कॉपर और कॉपर फिर बर्बन से दांत मार के फैमिली निकाल दिया गया, कॉपर और एक बर्बन ही तरह के फैमिली हैं। सुन कॉपर और बर्बन फैमिली की फितरत एक जैसी है। हाँ, हाँ चल आगे। बेसिकली यही हाँ है ना, डिस्प्लेसमेंट है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। जो ज्यादा हाँ, सिंगल रिएक्टिव होगा डिस्प्लेसमेंट है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा पोजीशन उसको अच्छी जगह मिलेगी। एक कंपाउंड में से। हाँ चल आगे। हाँ, उससे एसोसिएशन मिलेगा, किसी का साथ साथ मिलेगा, बाकी को अकेला फेंक हाँ, दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट आता है। इसमें ये है कि दोनों को एसोसिएशन तो मिलेगी, पर एक चीज होगी कि एक ज्यादा अच्छा है एक बुरा है। एक जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, ऑप्शन एग्जांपल देख लो आपकी स्क्रीन पे, सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट को अगर हम रिएक्ट करते हैं, मिक्स करते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम को मतलब सल्फेट के साथ रहना नहीं था, उनकी लड़ाई चल रही थी, तो वो चला गया क्लोराइड के पास, और ऐसे सोडियम ज्यादा ताकतवर था तो उसने बेरियम को हटा दिया वहां से, तो बेरियम को जगह नहीं मिली, वापस सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट के पास आ गया, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और ये एक हमें अदर दूसरे टाइप के रिएक्शन को फॉर्म करता है जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो ये बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट जो फॉर्म होता है वो एक वाइट प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो अपने फालतू क्या होते कहते हैं, हैं इनका इसे, कुछ काम नहीं होता। हाँ कुछ काम नहीं होता, वेस्ट प्रोडक्ट्स मान वेस्ट लो, प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल होते हैं ये सॉल्यूशन में, और वेस्ट प्रोडक्ट। हाँ, सॉल्यूशन में नीचे बैठे रह जाते हैं। अच्छा, हाँ, नीचे अब बैठे इसके बाद बढ़ते हैं आगे एक दूसरे रिएक्शन पे जो ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन है। अरे तो ये भाई, ये तो पढ़ ले, व्हाट कॉजेस दिस। सही हाँ, बात तो है। बता तो दिया।
हो गया वो हो प्रेसिपिटेशन गया रिएक्शन हो गया। हो चुका। अच्छा हाँ सेम चीज है, ओके आगे चल। हाँ, तो अब आ गए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पे। ये अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाकी सारा पढ़ो ना पढ़ो, ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है नहीं पढ़ लेंगे, हाँ पढ़ पढ़ लेंगे लेंगे आगे। सर, आगे पढ़ चल। लेंगे सर, आगे पढ़ेंगे। हाँ The आगे चल। surface of copper powder become coated with black copper oxide। अबे मुझे भी नहीं पता कॉपर ऑक्साइड ब्लैक क्यों होता है, पर होता है तो याद कर। ठीक है, किसी को पता है? अच्छा नहीं पता। नहीं नहीं, क्योंकि वो ब्लैक होता है। ठीक। हाँ ठीक। This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. That's why it's black. वाओ, लिखा हुआ है, पढ़ के क्या लिखा हुआ है बता भाई रहा साहब। है, खुद बता। तो खुद भी यही बता रहा हूँ मैं तो। नहीं नहीं इसमें नहीं ये नहीं पता है कि ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म होता है, इसमें पता है कि ये कोई सब्सटेंस क्यों नहीं, फॉर्म होता है। कोई जरूरी नहीं है, आगे चल। हाँ चलो बार आगे। बार रखा तो आगे बढ़ो। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें होता है कि एक जगह ऑक्सीजन मतलब साथ अकेला पड़ रहा था यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन। रिएक्शन भी है। हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला पड़ रहा था, उसे किसी की सहायता चाहिए थी। पर ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे और एक को मन नहीं था, ठीक है, एक को बचाने का मन नहीं था, वो अकेले ही खुश था कि उसे अकेले कोई डांटता नहीं है, तंग नहीं करता, तो अकेले सारे काम करेगा। तो इसमें से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चला गया कॉपर के साथ और दूसरा अकेला सेल्फ रहा। तो इंडिपेंडेंट, उसे आप सेल्फ हाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, और उसे कोई भाव नहीं देता, ठीक है, इसलिए हम इससे कॉपर ऑक्साइड रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इन्हें हमसे कोई दुश्मनी है, ठीक है, कि हमने कॉपर ऑक्साइड तो फॉर्म कर लिया, पर इन्हें सिर्फ कॉपर ऑक्साइड से काम नहीं चलेगा, इन्हें उसको और भी और मतलब उसी को आगे कॉम्प्लेक्स, बढ़ाना है, उसको और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स करना कर। है। This is called तो reduction, हाँ पहला वाला हुआ और रिडक्शन, oxidation, पहला वाला रिडक्शन हुआ पहला वाला रिडक्शन ऑक्सीडेशन, हुआ। और ऑक्सीडेशन। दूसरा वाला रिडक्शन। हाँ उसमें नहीं पहला वाला CU, दोनों ही हुआ, ऐड हो दोनों ही हुआ। पहला वाला ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि Cu में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन हुआ। ये रिडक्शन हुआ क्योंकि नहीं O में H ऐड हो रहा है। और O हट भी रहा है Cu हाँ में से। हाँ तो हाँ ये दोनों रिडॉक्स है, रिएक्शन और दोनों में दोनों हो रहा है, दोनों ही हो रहा है, पहला वाला भी दोनों ही जैसे है, H2 क्योंकि प्लस उसमें O2, ऑक्सीजन में से एक मॉलिक्यूल हट रहा है। जैसे H2 प्लस O2 रिडॉक्स होता है। हाँ H2 प्लस O2 रिडॉक्स होता है कि उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यस रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे हमने नीचे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल देखे हैं, तो वो जरूर पढ़ लेना। रिडॉक्स रिएक्शन, हाँ तो इन अ सब्सटेंस gains if a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen, it is said to be reduced. और if a substance gains hydrogen, hydrogen gains hydrogen और redox loses reaction है, oxygen। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो हाँ रहा है। redox है। ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 के साथ और रिडक्शन हो रहा है Cu के साथ। हाँ yes नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, फालतू है, हाँ, छोड़ो फिर आगे चलो। बस याद किसी कर काम लेना। के लिए है। हाँ हाँ अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के काम का, क्योंकि ये तो हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं सिर्फ रिएक्शन पढ़ा के, तो हमें सोचना है कि वो करता भी क्या है। उसके दो एग्जांपल्स है, कोरोजन और रेंसिडिटी। पहले हम अब मैं पढ़ा कोरोजन पढ़ेंगे। हाँ कोरोजन क्या होता है, मान लो आपने साइकिल बाहर छोड़ दी, बारिश आ गई, फिर आपको सबसे पहले क्या होएगा? बारिश रुकने के बाद सबसे पहले तो डांट पड़ेगी मम्मी से, नहीं कहा। बाहर की छोड़ी। फिर जब साइकिल का हाल देखने फाइनली जाएंगे तब खुद को ही डांटोगे, छोड़नी ही नहीं चाहिए थी पहली बात तो जब आयरन की साइकिल, आयरन सब्सटेंसेस पे जब उस पे मॉइस्चर या फिर एसिड अटैक करते हैं तो उसे कहते हैं इरोजन, करोजन एंड यस करोजन। जैसे मेटल्स पे आयरन पे रेड कवरिंग आ जाती है, जिससे जब आयरन
एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, जैसे Fe+O2 गिव्स Fe3O2, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जो रेडिश ब्राउन पाउडर हो जाता है आयरन के ऊपर। ये पर यहाँ पे कोटिंग कंफ्यूज होना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो कि आयरन और फेरस कहाँ से आ गया। लैटिन नाम है फेरस आयरन का। हाँ, आगे चलो। ये अब Thank तक you. पता ही होना चाहिए वैसे। हाँ पता होना चाहिए, अगर पढ़ के आ रहे हो तो पता ही 9 होना से, चाहिए। या फिर चेक दे के पास छोड़े तो फिर पता कर लो यहाँ पे, फिर हाँ 10th में ऐसा नहीं हो सकता। सही बात है। चल आ जाओ। ये फिनोमेना कॉपर और सिल्वर पे भी होता है। जब व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एक्सेट्रा, इट इज सेड टू करोड एंड दिस इज कॉल्ड करोजन। ये फालतू की डेफिनेशन है, लर्न कर लेना। पर अगर जो मन करे तो, हाँ, ओके। मन समझ करे आ तो। गया, समझ आ गया तो ठीक है, तो लर्न करने की समझ जरूरत आ नहीं गया है। तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है भाई, खुद ही लिख सकते हैं, हाँ समझ में आना चाहिए। समझ आ गया तो लर्न करने की जरूरत नहीं आया तो रिवाइंड करके फिर से सुन लो। हम्म, तो चलो। it is said to corrode at the process is corrosion। सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आ जाती है, कॉपर पे ग्रीन आती है, आयरन पे रेड ब्राउन आती है। और corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railing ships। जो भी मेटल की चीज है उस पे सब डैमेज होता है। करोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। ये बकवास है कि अगर डैमेज होएगा तो सीरियस प्रॉब्लम है ही। अब आते हैं रेंसिडिटी पे। तो मान लो आपने अपना लेस का पैकेट खोल के एक दिन के लिए बाहर छोड़ दिया, फिर क्या होगा? दुख मनाएंगे क्योंकि अगले दिन वो मिलने वाला नहीं वाला, बहुत ही बकवास सारा हाँ, खराब हो जाएगा। सबसे पहली बात तो दुख बनाएंगे, हमारा छोटा या बड़ा भाई या बड़ी बहन खा जाएंगे। नहीं, दूसरा एक और चीज सुनो, वैसे भी हाँ, लॉकडाउन चल रहा है, दूसरा पैकेट मिलेगा नहीं। दूसरा पैकेट मिलेगा नहीं, जितना है उतने से खुश रहो। तो जब इसलिए हमेशा याद रखो कि लेस हमेशा एक बार में खाना चाहिए। हाँ, छोटा और पैकेट पेरेंट्स को खाओ। भी दिखा दो। हाँ, छोटा पैकेट खाओ, बस एक साथ खाओ। जब किसी फूड सब्सटेंस में फैट्स या ऑयल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वो फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडेशन। इससे अब होता क्या है, बहुत ज्यादा स्मेल खराब हो जाती है और टेस्ट खराब हो जाता है। उस लेज में से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाएगी और टेस्ट तो छोड़ ही दो, खाने लायक ही नहीं बचेगा। फिर आपको मजबूरी अपने भाई या बहन को ही देना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप बेसिस खा लो और आपको पता चल जाएगा, साबुन खा के देखो वैसा टेस्ट हो जाएगा। साबुन जैसा टेस्ट हो जाएगा। सही में मैं भी वही सोच रहा था, बता तो ऐसे रहा है। जैसे इसने खुद ही टेस्ट करके देखा है। और और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लेस से हम रोज पूछते हैं हर बार लेस खाते हुए, हवा क्यों होती है इतनी सारी चिप्स से ज्यादा तो हवा होती है। यहाँ इस वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो जब लेस चिप्स वगैरह में फैट्स होते हैं और उस पैकेट को एयर टाइट क्लोज कर जाते हैं और उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडाइजिंग गैस है और वो ऑक्सीजन को चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करने देती। तो